Okay, so we are going to study today relationship between triangles and some of the lines. That is what we are going to do in today's session. So let's start this class. Let's say I have a triangle and I draw medians. And let's say I draw angular bisector. In the previous class, we have already studied something on angular bisector, right? What is that we studied in angular bisector? Angle bisector theorem, right? So angular bisector will divide the opposite side in the ratio of the sides containing the angle. That is what we studied. So let us say AD is a median. AD is an angular bisector. Similarly, let us say, BE is also an angular bisector, and let us say CF is an angular bisector. The only thing we need to understand here is wherever two angular bisectors will meet, the third angular bisector will also meet at the same point. This point of intersection of angular bisector. So what we are talking of, point of intersection of angular bisector. क्या बनता है? This value is known as in center. Okay. So from in center, let us say from in center, if you drop a perpendicular, this may not be perpendicular, right? जो angular bisector may not be perpendicular, it will be only perpendicular and angular bisector for all three sides if it is an equilateral triangle. So let us say we have dropped a perpendicular bisector, perpendicular from the point of intersection of angular bisector. So this length is known as in radius. This length is known as in radius. Why it is known as in radius? Because if you draw a circle using this as a radius, right, we can draw a circle that will touch the three sides of the triangle. So that is the this circle is known as in circle, right? So in radius is always represented as small r. This small r can be calculated as A upon S. What is A? A is area of triangle. And what is S? S is semi-perimeter of triangles. Okay. We understand this? Right. Now, like we have in center, we also have what you called as an X center. What does it mean? Say, for example, I were to draw this thing like this. Okay. And let me say, if I were to extend this line further, like this. Okay. And I also extend this line further, like this. ठीक है. Now, if I take angular, this is known as exterior angle, right? ये क्या बनेगा ये मेरा? ये इसका exterior, ये तो समझ में आ रहा है ना? ये से कंटिन्यू. ये exterior angle है. अगर मैं इस exterior angle का angular bisector ले लूं, समझ में आ रहा है? Exterior angle का angular bisector ले लूं, और ये वाला जो मेरा angular bisector है, मतलब ये जो पहले से चला आ रहा है, ठीक है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे जहां पे दो एक्सटीरियर और ए का इंटीरियर. सो दिस पॉइंट इज नोन एज एक्स सेंटर. क्या बनेगा ये? एक्स सेंटर. अगर मैं इस एक्स सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है?
ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं मान लो ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स रेडियस, it is represented as r1. So this is r1 can be taken as a by s minus a. Why a? Because we have already told you, if this is my vertex a, this length will be known as small a, this length will be known as small b, and this length will be known as small c. So this will become x center. Now using this x center, if you were to draw a circle, right, if you were to draw a circle, it would touch क्या ऐसी क्या आ रही है, ये इसको टच करेगा, मतलब ये सर्कल है, ये ओवल नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है, ये इसका एक सर्कल। वैसे ही अगर हम इसका बनाते हैं, हमने इसको एक्सटीरियर एंगल बनाया, ठीक है, ऐसे ही इसका एक्सटीरियर एंगल बनाया, ठीक है, और इनका मैंने ये एंगुलर बाइसेक्टर बनाया ऐसे, इसका एंगुलर बाइसेक्टर बनाया ऐसे, और इसका ये लेंथ मैंने बनाई ऐसे, समझ में आ रहा है। ये भी मेरा क्या बनेगा, एक्स सेंटर, एक्स सेंटर R2, या इसको मैं R2, इस R2 की वैल्यू बनेगी a बाय s माइनस बी, s माइनस बी, ठीक है, बी वाली लाइन पे आ रहा है ना, जैसे s माइनस ए, s माइनस बी के सामने साइड है ना, ठीक है। वैसे ही अगर हम इसको एक्सटीरियरली ड्रॉ कर लें और इसको ड्रॉ कर लें, ठीक, फिर इसका एंगुलर बाइसेक्टर ले लें, ठीक है, और ये यहां से यहां बनेगा, ठीक है, ये मेरा बनेगा R, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये मेरा R3 है, ठीक है, ये यहां से इसका परपेंडिकुलर है, ये मेरा R। अगर हम यहाँ सर्कल बनाते हैं दोनों केसेस में, समझ में आ रहा है, अगर हम दोनों केसेस में सर्कल बनाते हैं तो ऐसा सुंदर सा सर्कल बनेगा, और वो क्या करेगा, तीनों साइड्स को, अरे लकीली अच्छा ही बन गया सच में, ये सेंटर, ठीक है, ये सेकंड सर्कल बनेगा। A इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे तीसरा सर्कल बनाना पड़ेगा तो वो ऐसे सारा बड़ा सारा सर्कल, इसको मैं हरा कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, ये समझ में आ रहा है, ये तीनों क्या, ये है, ये सारी चीजें, R3 का फॉर्मूला a बाय एस माइनस सी, R3 इज इक्वल टू a बाय एस माइनस सी। तो बेसिकली क्या है, इन रेडियस R इज इक्वल टू a बाय एस, R1 is equal to a by s minus a, R2 is equal to a by s minus b, R3 is equal to a by s minus c. ये सारे फॉर्मूले, a is area of triangle, s is semi perimeter, a b c are sides, r is in radius, r1 r2 r3 are x radii, ठीक है। these are the characteristics and properties as far as these point of angular bisectors are concerned. No problems? Okay. Now
Now one of the possible questions that we can come across in angular bisector is also this. ज्यादा बड़ा हो गया क्या? Let's say this is my triangle and let's say these are my angular bisectors, right? So this is bisecting this one. So obviously, let's say, this is bisecting this one. And by the logic, let us say this is bisecting this one. Okay. Obviously, you know that this is in center. Let me say this is O. This is A, this is B, and this is C. Can you tell me what is the relationship between this angle O and this angle A? A is half of O, which is absolutely wrong answer. 90 plus 90 plus क्यों? क्योंकि वो तीनों जो है हमारे एंगल्स उसको बाइसेक्ट कर रहा है 2c/2 और a Sir, plus b plus c equals to 180 degree. मैं कि सर्कम रेडियस इन रेडियस का कोई कनेक्शन नहीं है. सर्कम रेडियस अलग चीज होती है, इन रेडियस अलग चीज होती है. अभी बताता हूं क्या होएगी. निकालो इसको, ए और ओ में रिलेशन बताओ कैसे आया. जैसे ये तो वो ये वाले तीन एंगल वो इनसे ना a o c और a b की वजह से है. हमें ओ और ए में रिलेशन चाहिए. ओके. कैन आई से अगर मैं एंगल ओ निकालना चाहता हूं तो एंगल ओ प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. एट द सेम टाइम हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. चलेगा? ठीक है. नाउ अब हमें बी और सी नहीं चाहिए, तो बी और सी का रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं. ठीक है. या फिर हम b प्लस सी को 180 माइनस ए लिख दें. b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए. नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिप्लेस्ड हियर. तो ये कितना बनेगा? एंगल ओ प्लस हाफ ऑफ b प्लस सी कितना बनेगा? 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोई दिक्कत तो नहीं है? हम इसको कर सकते हैं एंगल ओ प्लस 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ओ इज इक्वल टू, इसको शिफ्ट करेंगे तो 90 प्लस ए बाई 2 आ जाएगा. तो यहां से चूंकि हम ये ए और ओ में निकाल रहे हैं, मान लेते हैं आप बी और इसमें निकाल रहे होते, फिर क्या बनता? हाँ, तो ये वाला जो मान लो ये ओ डबल डैश है, मान लेते हैं ओ डबल, तो इसकी वैल्यू क्या बनती? 90 प्लस बी बाई 2. ठीक है. मान लेते हैं ये वाला है, मान लेते हैं ओ ट्रिपल डैश है. ओ ट्रिपल डैश क्या बनता? 90 प्लस सी बाई 2. ठीक है. ये रिलेशन आएगा तीनों इसका. ये एंगल बाइसेक्टर और ट्राइंगल के लाइन की अंडरस्टैंडिंग है आपस में. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें. लेट्स टेक द नेक्स्ट वैल्यू.
Then we come down to understanding of, जी बेटा, हाँ. So let us say now we are talking of perpendicular bisector. So let's say I kind of make a different triangle. So if I draw perpendicular bisector, you see what is a perpendicular bisector? A perpendicular bisector is a line which will divide the side and be also 90 degree. Now this line may not pass through the vertex. Now all the lines that we are going to study will actually pass through vertex. However, this perpendicular bisector does not pass through the vertex. So let us say this the second perpendicular bisector happens to be this. So wherever the two perpendicular bisectors will meet, the third perpendicular bisector would necessarily meet from the same point. So point of intersection of perpendicular bisectors is called circumcenter. It's called circumcenter now. Why it is called circumcenter? Because if you take the circumcenter and draw a radius to any vertex, let us say you draw this radius. Let's say this is known as capital R, it is known as circumradius. Why it is known as a circumradius? Because if you draw a circle, right? If you draw a circle, it will touch the three vertices of the triangle. So therefore, this circle is known as circumcircle. So this circumcenter is capital R, which is the product of the three sides divided by 4 times the area of triangle. This is the formula for finding circumradius. हाँ महक समझ में आया अभी क्या है डिफरेंस circumradius circumcenter में? Yes sir, yes sir. Yes sir. ठीक है. ये circumradius इस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर बोलेंगे. ठीक है. So you have circumcenter, circumradius and circumcircle, and this circumradius can be found out product of the three sides, which is the nothing but the sides of the triangle divided by 4 times the area of triangle. So that is the relationship that we have with perpendiculars. ठीक है. तो ये जो रेडियस बनेगा ना है नहीं, एक ये रहा जहां पे 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे ना, थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहीं से मीट करेगा. जैसे कि जहां पे 2 एंगुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे ना, तीसरा एंगुलर बाइसेक्टर विल नेसेसरली पास थ्रू द सेम पॉइंट. ठीक है. अगर जब हम ये रेडियस बनाएंगे, ऑब्वियसली चूंकि ये सर्कल है तो ये सारे रेडियस मेरे सेम ही आएंगे. चलेगी बात? ओके. यहां तक तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है. ओके. इसके बाद आता है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स. ठीक है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स. तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, वैसे ही कोई रैंडम सा ट्राइंगल थोड़ा सा. एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है जो सामने वाले वर्टेक्स से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो ये एल्टीट्यूड होता है. ठीक है. ऐसे ही अगर हम इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो लगभग ये यहाँ आएगा. तो जहां पर 2 एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे, तीसरा जो एल्टीट्यूड होगा वो इसी पॉइंट से पास करेगा. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर.
सो क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर. सो लेट अस से दिस ऑर्थो सेंटर हैपेंस टू बी O. ठीक है, ये है O. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, मान लेते हैं D E F. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगल A एंड दिस एंगल O? ऑर्थो सेंटर वन मिटा देते हैं. और दूसरे में 180 दोनों को मिला के कैसे? देखिए, हमें एंगल O निकालना है. अगर हम AFOE देखें, AFOE देखें तो ये वाला एंगल है. ठीक है. अब और ये 90 है तो ये भी 90 बनेगा, ये 90 है तो ये भी 90. तो अगर हम बात करें AFOE की, ये टोटल 360 डिग्री बनना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल है. इसमें से दो एंगल 90 हैं, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल O जो है वो 180 होना चाहिए. बस जी, सप्लीमेंट्री होते हैं. चूंकि ये O है तो ये भी O ही है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो आप एंगल O की वैल्यू कह सकते हो 180 माइनस एंगल A. उसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो 180 माइनस B हो जाएगा, और तीसरा वाला है 180 माइनस C. ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्थो सेंटर का जो सेंट्रल एंगल बनता है उसका रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं. ये तो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, तो हमारा अंदर आया. हम एक बार मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है फॉर एग्जांपल. मान लेते हैं छोटा है. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, जो AB है दैट इज एक्टिंग एज एन एल्टीट्यूड टू BC एंड BC इज एक्टिंग एज एन एल्टीट्यूड टू AB. समझ में आ रहा है? तो जो तीसरा वाला एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, जो इसका तीसरा एल्टीट्यूड होगा वो कहां से पास करेगा, इसके मिड पॉइंट से. ठीक है, थर्ड एल्टीट्यूड विल पास थ्रू द, ये इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा हमें. इस पे 90 डिग्री. तो जो पॉइंट ऑफ जो उसका ऑर्थो सेंटर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वर्टेक्स पे. इस केस में कहाँ लाई करेगा वो, वर्टेक्स पे. वर्टेक्स पे ना. ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये देखो, ये ट्रायंगल है ऐसे, ये वर्टेक्स है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया. ठीक है, A से इस पे ड्रॉप हो गया. अगर AB लाइन मानेंगे तो C से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया. वैसे ही हमें इस पे से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा. तो ये तीनों कहाँ मिलेंगे, हाँ. सर ये AC को इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड नहीं करेगा ना? क्या चीज? AC को इक्वल पार्ट्स में तो नहीं डिवाइड करेगा ना? AC को मैं देख रहा था करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. नहीं करेगा, कोई जरूरी नहीं है. और सर इसमें इसका ऑर्थो पॉइंट बन कैसे सकता है B और C का? क्या कैसे बन सकता है, यही पॉइंट है. ऑर्थो कैसे बन सकता है सर इसमें ऑर्थो पॉइंट तो वो होगा ना जो 4 पे इंटरसेक्ट करेगा. जो 4 क्या करेगा, जो 4 पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा, वही तो बताया था आपने ऊपर वाले केस में भी. 4 पॉइंट पे कहाँ करेगा,
जहां पे दो जो लाइनें सेंटर मीट पॉइंट होंगी बताया था ना आपने, हैं, ये आपने बताया था सेंटर पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा उसको तो सेंटर बोलेंगे हम। जहां पे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे उसको बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। फिर इस पे तो कर ही नहीं रहे ना सर तीनों। क्यों? ये इससे एल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ करेगा इसके ऊपर, वहीं से तो निकलेगा ये एल्टीट्यूड। भाई ये वर्टेक्स है, इसका एल्टीट्यूड इस पे, इसका एल्टीट्यूड इस पे, इसका एल्टीट्यूड इस पे। ठीक है, ये राइट एंगल। अब मान लेते हैं ऑब्ट्यूस एंगल होता तो क्या होता, ये मान लेते हैं ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, ये फिगर ऐसे है और ये ऐसे, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, ये बी है। अब बीसी के ऊपर हमें क्या ड्रॉप करना है, ए से परपेंडिकुलर। तो अगर मैं बीसी की बात करूं तो बीसी लाइन तो ये बनेगी, तो जो ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा बीसी पे वो तो ये वाली लाइन है, ठीक है, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है। बी से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करेंगे, बी से आइडियली तो इधर जानी चाहिए, है ना, ऊपर की तरफ जाएगी ये। ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये ऐसे जाएगी और इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं मीट करेगी, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो सी का परपेंडिकुलर होगा वो ए बी पे ड्रॉप होगा ऐसे, ये भी एक्सटेंड करोगे, है ना, तो ये वाली जो लाइन है ये जाएगी ऐसे, ये इस पे 90 डिग्री है, ये यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ ये यहाँ पे मिल रहा है, ये इसका ऑर्थो सेंटर बनेगा। तो अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अंदर बनता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो अंदर बनेगा, राइट है तो वर्टेक्स पे बनेगा और ऑब्ट्यूस है तो बाहर बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर से रिलेटेड चीजें हो गई हैं। इसके बाद आती है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। मान लेते हैं ये मेरी एक लाइन है, ये मान लेते हैं एक ऐसा ट्राइंगल है, हमने कल पढ़ा था मीडियंस का अंडरस्टैंडिंग। मीडियंस वो लाइन होती है जो सामने वाले को दो बराबर हिस्सों में बांट देगी, ये इसके डिवाइडेड, ये इससे डिवाइडेड, तो ये सेकंड वाला भी इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो जहां से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियंस जहां से पास करेगा, जो तीसरा मीडियन है वो डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है, इसको जी से जनरली रिप्रेजेंट किया। जी की खास बात ये होती है, दिस सेंट्रॉइड विल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स, 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये डिवाइड करेगा, डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1 टूवर्ड्स वर्टेक्स, ठीक है। तो क्या है, ये किसकी बात कर रहा है, सेंट्रॉइड की। है इसमें ऑब्ट्यूस एंगल वाले में, ऊपर वाले में क्या ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये रहा बाहर है, और कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, इसमें तो इंटीरियर एंगल के लिए वो नहीं बनेगा, हाँ। ठीक है, ये सेंट्रॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स है।
ठीक है, यहाँ क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछूं अभी मैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल what is the ratio of capital R is to small r? सारे फॉर्मूले पता है आपको, कैपिटल आर के, स्मॉल आर के, सब कुछ। एरिया क्या था? अगर ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं फोर साइडेड फिगर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम फोर साइडेड, तो हमने थ्री साइडेड फिगर कर लिया, अब हम फोर साइडेड फिगर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फोर साइडेड फिगर सबसे जो मोस्ट क्रूड फिगर होती है, जनरल फिगर होती है, वो हमारी क्या होती है? क्वाड्रिलेटरल होती है। अगर मैंने कोई भी फोर साइडेड फिगर ऐसे ले ली, ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने फोर साइडेड ऐसी फिगर ले ली, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स है वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। सो डायगोनल्स बेसिकली intersect. So the only property that you know here is diagonal intersect. Sum of all four angles will be 360 degrees, right? Now if you try to make sure कि ये जो डायगोनल्स है, ये जो डायगोनल है, इसको थोड़ा नीचे ले आए, मतलब इस डायगोनल को थोड़ा सा ऐसे नीचे ले आए। नीचे क्यों ला रहे हैं? ताकि ये एडी को बाइसेक्ट कर दे। वैसे एडी को थोड़ा एडजस्ट कर दें ताकि वो एसी को, बीडी को एडजस्ट कर दें ताकि ये एसी को बाइसेक्ट कर दे। और फिर चूंकि ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, अब मान लो मैंने लाइन ज्वाइन कर दी ऐसे, तो ये फिगर बदल जाएगी। ये मिनिमम फिगर क्या बनेगी? मिनिमम मतलब ये गारंटीड है, वो बनना ही बनना है। यस, वो बनेगा पैरेललोग्राम। सो मतलब जैसे कि मान लेते हैं
मान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे कहीं पर भी, ठीक है। अब इसके चारों तरफ एक धागा बांध देते हैं तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगी। अब मान लो मैंने इसको बाइसेक्ट कराने के लिए इस पेन को थोड़ा नीचे ले आया ऐसे, तो ये ब्लैक वाले पेन को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये दूसरे वाले को तो नहीं बाइसेक्ट। इसको मैं ऊपर ले आया ताकि ये दोनों बाइसेक्ट करने लगे। अभी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो जो अब धागा है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी भाई, उसी मान लो धागे से हमने बाउंड्री बना रखी है, तो अब धागे की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो ये फिगर कुछ चेंज हो जाएगी, डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये जो फिगर बनेगी ना, वो एटलीस्ट जो फिगर बनेगी वो पैरेललोग्राम बनेगी। बाइसेक्ट का मतलब ही मिडल होता है। नहीं नहीं, इंटरसेक्ट का मतलब कट करना। हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ इंटरसेक्शन मिड पॉइंट्स पे करा रहे हैं, इसीलिए हम उसको बाइसेक्ट कहते हैं, क्योंकि दो बराबर पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। तो जो मिनिमम फिगर बनती है वो हमारी बनती है, यहां से हम बनाते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब पैरेललोग्राम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर जिसकी हम अभी पढ़ाई करने वाले हैं। तुम्हारा क्या बन गया, ये मान लो अब जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, मान लेते हैं चारों साइड्स है मेरी ए बी सी डी। तो अब इसको बनाने के लिए हम या तो बोलते हैं वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्या मतलब है इसका, मान लो मेरी दो साइड है, ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएं और ये दोनों की लेंथ इक्वल, और फिर हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, इन दोनों पॉइंट्स को, समझ में आ रहा है। इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे। हमें इन दोनों जो मेरी उंगली है उसके बारे में कुछ पता नहीं, हमें सिर्फ इस दोनों पेन के बारे में पता है कि ये पेन कैसे हैं, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। इवन देन वी कैन कंक्लूड दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा हम अगर मान लो मैंने दो लाइन ऐसे पैरेलल बना दी और दो लाइन ऐसे पैरेलल बना दी, उसके अंदर जो एरिया आएगा वो भी पैरेललोग्राम है। तो दो बेसिक कंडीशन है या नेसेसरी कंडीशन है, या तो हम ये बोले ऑपोजिट, नहीं नहीं बन सकता है लेकिन गारंटीड नहीं है, गारंटीड पैरेललोग्राम ही है। देखिए स्क्वायरनेस लग रहा है क्या, तिरछा करूं इसको ऐसा, देख ये पैरेलल है मान ले, और ये भी पैरेलल है। कहाँ पैरेलल, कहाँ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, हाँ तो बस फिर ये नहीं है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो, या फिर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, दोनों हो, तब जाके पैरेललोग्राम बने। समझ में आ रहा है, या तो ऑपोजिट साइड्स दोनों पैरेलल हो या एक पेयर इक्वल या पैरेलल हो, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, ये भी पैरेलल होगा, और ये। तो इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम बोल सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite sides are also equal. We can also say AB is equal to DC and AD is equal to BC. ये भी true है, opposite sides are equal and opposite sides are parallel. समझ में आ रहा है। फिर इसकी प्रॉपर्टी होती है opposite angles are equal. opposite, yes, जैसे कि एंगल A is equal to एंगल C and एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। समझ में आ रही बात, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। समझ में आ रहा है, क्या बनता है मेरा एडजेसेंट मतलब क्या है, एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू इज सेम एज एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू इज सेम एज एंगल C प्लस एंगल D की वैल्यू इज सेम एज एंगल D प्लस एंगल A की वैल्यू इज सेम एज 180 डिग्री। यानी ये एडजेसेंट जो साइड साइड वाले दोनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री। समझ में आ रही बात है। उसके अलावा हम कह सकते हैं डायगोनल्स के बारे में आते हैं। डायगोनल्स के बारे में हम क्या क्या कह सकते हैं, एक तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है क्योंकि तभी तो ये फिगर बनी थी, तो वहीं से तो ये प्रॉपर्टी आई थी। तो हम ये कह सकते हैं डायगोनल्स
Diagonals also divide it into two congruent triangles, but they not bisect opposite angles. यानी ये डायगोनल AC, ये ऊपर वाले एरिया को यानी ADC और ABC को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो सकते हैं, SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम लगेगी, लेकिन ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा है. डिस्पाइट इट मेकिंग इनटू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इट इज नॉट बाइसेक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है. सो डायगोनल्स divided into two equilateral, sorry क्या कह रहा हूं, two congruent triangles, but do not bisect opposite angles. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही बात, क्लियर है. अब ये जो इसके डायगोनल्स हैं, जैसे हमने बनाए थे, टेढ़ा मेढ़ा किया था, अगर हम ध्यान से देखें तो ये डायगोनल्स 90 पे तो बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फालतू बनेगा एक्स्ट्रा वाला है ना, मान लो ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है, हम कोशिश करके इसको ऐसे तिरछा करके 90 पे बाइसेक्ट कराएं, समझ में आ रहा है. ऐसे अभी तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे तो 90 पे हो जाएगा, तो ये डिजाइन बदल जाएगा बाहर बाहर. तो डिजाइन बदल के क्या बनेगा, मिनिमम फिगर क्या बनेगी, हैं? यस, द मिनिमम फिगर वुड बी अ रोम्बस. फिगर क्या बनेगी, रोम्बस. इसमें हमने क्या किया, डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराया, डायगोनल बाइसेक्ट कराया, तो फिगर क्या बन गई मेरी, रोम्बस. अब एक बात बताओ, रोम्बस जो है वो बना तो पैरेललोग्राम से ही, तो पैरेललोग्राम की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो तो इसमें रहेंगी, जैसे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल विल डिवाइड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये सब तो रहेगा ही रहेगा. एक्स्ट्रा क्या है, नॉट ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ये एक्स्ट्रा क्या है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. इसमें क्या था, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी, इसमें ऑल फोर. इसको स्क्वायर थोड़ी ना बोलते हैं, अभी बताऊंगा कब बोलेंगे. ऑल साइड्स आर इक्वल एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है. सेकंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90, इसमें बाइसेक्ट कर रहा है, इसमें क्या होएगा, बाइसेक्ट एट एक. ये तीसरा क्या होगा एक्स्ट्रा, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल आल्सो. इसमें तो नहीं बाइसेक्ट कर रहा था ना डायगोनल, इसका जो डायगोनल है ये इसको बाइसेक्ट करेगा ऑपोजिट एंगल को भी, ठीक है. ये भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट, ठीक है. यहां तक बात समझ में आती. अब जो ये मेरे पैरेललोग्राम था जिसमें ये डायगोनल्स क्या कर रहे थे, बाइसेक्ट कर रहे थे, इसमें देखिए एक डायगोनल लंबा है और एक डायगोनल छोटा है, समझ में आ रहा है. अगर मैं इस वाले डायगोनल को और खींच के और लंबा बना दूं थोड़ा सा ऐसे, और फिर ये फिगर को ज्वाइन करूं, समझ में आ रहा है, तो फिगर चेंज हो जाएगी. फिगर क्या बनेगी, द फिगर विल बी अ, इसमें क्या किया हमने, डायगोनल इक्वल, तो फिगर मेरी क्या बन गई, रेक्टेंगल. कहना इसे जो रेक्टेंगल है वो भी पैरेललोग्राम से बना है,
तो इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट angles are equal, adjacent angles are supplementary, diagonals bisect each other, diagonals will divide into two congruent triangles, सब सेम है. एक्स्ट्रा क्या है? Not only opposite angles are equal, all four angles are equal. All four angles are equal and each is equal to 90. अगला है diagonals are also equal. डायगोनल्स आर इक्वल, लेकिन इसमें ध्यान रखना डायगोनल्स बाइसेक्ट नहीं करेगा. जो जो मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी थी वो इसमें मेंटेन रहेगी, एक्स्ट्रा में नहीं आएगी. इसमें एक्स्ट्रा में आ गई थी कि बाइसेक्ट भी करेगा, इसमें डायगोनल्स उसको बाइसेक्ट नहीं करेगा. मतलब ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करेगा ना. कॉन्ग्रुएंट में तो डिवाइड करेगा लेकिन ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करेगा. समझ में आ रही बात? ये प्रॉपर्टी मेरी किसकी है? रेक्टेंगल की. ठीक है? हैं? हाँ, रोम्बस में होंगे. अब मान लो ये रोम्बस बनाया मैंने, इस रोम्बस के डायगोनल्स देखो, छोटे बड़े लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं ना. अब इसको मैंने मान लो खींच के बड़ा करने की कोशिश करी तो फिगर क्या बनेगी? यहां से फिगर क्या बनेगी? स्क्वायर. ठीक है. अब रेक्टेंगल में डायगोनल्स क्या है? 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करे. तो अगर हम रेक्टेंगल के डायगोनल्स को 90 करके कोशिश करें तो भी फिगर क्या बनेगी? स्क्वायर. यानी रोम्बस के डायगोनल्स को बराबर करें या रेक्टेंगल के डायगोनल्स को 90 करें, दोनों केस में मेरे पास क्या बनेगा? स्क्वायर. कहना इसे स्क्वायर रेक्टेंगल से भी बन सकता है और रोम्बस से भी बन सकता है. इसका मतलब है रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट नहीं कर रहे. कौन से बेटा? किसके? रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 पे नहीं करेंगे. नहीं, क्योंकि अभी आपने बोला था कि रोम्बस से ही बना है वो, तो उसमें तो कर रहे हैं. रोम्बस से नहीं बना ना, रोम्बस के तो बराबर है, पैरेललोग्राम से बना है. देखो यहाँ से एरो डाला है. मान लो अपने को ऐसे कोई प्रॉब्लम आ जाए, फॉर एग्जांपल कभी हमें समझ ना आए कि इसके डायगोनल्स है नहीं है, तो एक ना अतरंगी सा फिगर बना लो. मान लो अपन ने ये बना लिया. अब इसको जब तुम बनाओगी ना, इससे पता चल जाएगा. देख कहाँ 90 तो नहीं बन रहे ना, और ये छोटा है ये बड़ा है. तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनाओ के आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या नहीं है. क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टी वैलिड है तो फिगर में भी वो वैलिड दिखनी चाहिए. ओके. तो कैन आई से स्क्वायर कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगल, इट कैन आल्सो बी मेड फ्रॉम रोम्बस. इसका मतलब ये है कि स्क्वायर इज हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, which is having all the properties of parallelogram, which is having all the property of quadrilaterals. So can I say if you talk of square, what is happening? Opposite sides are equal. Not only opposite sides are equal, all four sides are equal. Opposite sides are parallel. Not only opposite angles are equal, all four angles are equal, and each angle is equal to 90 degree. Diagonals are not only equal, they also bisect each other. They also bisect each other at 90 degree. They also divide into two congruent triangles. They also bisect opposite angles. All the properties that you've studied so far is applicable in square. Now, since square follows all the property of rhombus, I can say square is a rhombus. I can say square is a rectangle. I can say square is a parallelogram. I can say square is a quadrilateral. Can I say quadrilateral is a square? क्योंकि बेटे में बापू की सारी प्रॉपर्टी है, उल्टा पॉसिबल नहीं है. सो बेटा कैन बी रिफर्ड बाय डैड्स नेम बट नॉट द वाइस वर्सा. सो अ स्क्वायर कैन बी कॉल्ड अ रोम्बस. A square can be called as a rectangle, but a rectangle cannot be called as a square. Can a rectangle be called as rhombus? No, क्योंकि ये दोनों बराबर में है, ध्यान रखना. हाँ. Can rectangle be called as parallelogram? Yes. Can rectangle be called as a rhombus? No. Can rhombus be called as a parallelogram? Yes, sir. Can rectangle be called as quadrilateral? Yes, sir. Yes. ये समझ में आ रही बात?
नीचे वाली फिगर को आप ऊपर वाली फिगर बुला सकते हो, ऊपर वाली फिगर को नीचे वाली नहीं बुला सकते, ना पैरेलल वाली फिगर को भी हम नहीं बुला सकते। मतलब रेक्टेंगल और रोम्बस साइड साइड में, तो यू कांट से रोम्बस इज अ रेक्टेंगल या रेक्टेंगल इज रोम्बस बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टी। बट अ लोअर फिगर कैन सर्टेनली बी कॉल्ड एज अ हायर फिगर, but a higher figure cannot be called as a lower figure. Now there is one more figure which is left in between a quadrilateral and a parallelogram. In parallelogram we were having opposite sides as equal, नहीं, opposite sides are parallel, yani both pair of opposite sides in parallel. But if one pair of opposite side is parallel, then we call it as a trapezium. Then it is called as a ट्रेपीजियम। सो लेट अस जस्ट नीचे इसको अलग से पढ़ लेते हैं, वहां लिखा नहीं गया। तो मान लेते हैं ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ें, तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए तो हम इसको ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। तो ए बी सी डी, ठीक है। सो वन पेयर of opposite sides are parallel। समझ में आ रहा है? वन पे opposite sides are parallel, diagonals will intersect, और कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक। इसके अंदर अब एक चीज और आती है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, मान लेते हैं PQ, which is dividing this side in the ratio of m:n, m:n में, ठीक। अगर ये m:n होगा तो ये भी m:n होगा, मैंने बताया था पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी है। तो अगर मेरे को PQ की लेंथ निकालनी है तो आई विल टेक m अपॉन m प्लस n इंटू, m ऊपर वाली की तरफ है तो नीचे वाला ले लेंगे AB, प्लस n इंटू m प्लस n इंटू DC। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू अ which is lying any line parallel to the two parallel lines of a trapezium, उसकी लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला। अगर m और n बराबर होता है, यानी मिड पॉइंट होता, तो आप देखो DC प्लस AB का 2 हो जाता, एवरेज हो जाती। अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लेते हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उसको लेग्स बोलते हैं, लेग्स लेग्स, पैर पैर टांग, नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड लेग्स, ठीक है। अब अगर दोनों नॉन पैरेलल साइड्स बराबर हो जाएं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये फिगर है और इसमें हमारा मैं तो बना ही लेता मैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये पैरेलल हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। बेसिकली दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि जो जब लेग्स इक्वल हो जाए ना, लेग्स की लेंथ इक्वल हो जाए, तो हम इसको आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। और इंसिडेंटली जो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है ना, वो साइक्लिक होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम सर्कल में इसको डालेंगे तो ये एक सर्कल में सेट हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर सर्कल में हमने कोई ट्रेपीजियम बनाया तो इट विल नेसेसरली बी आइसोसेलेस, ठीक है। तो साइक्लिक ट्रेपीजियम is always cyclic trapezium जो है it is always isosceles, और वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। isosceles trapezium is always, और साइक्लिक का मतलब है सर्कल के अंदर वो फिट हो जाएगा। that is the meaning of a cyclic, what is it है क्या रेशियो, मतलब पी क्यू, पी जो है इस पूरी साइड को m:n में, यानी अगर ये लेंथ m है तो ये लेंथ m है, वो दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है? ओके, देन ये हमारी 4 साइडेड फिगर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद मैं आता हूं पॉलीगन्स की प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं, ठीक है। या बिफोर कमिंग टू दैट लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। मान लेते हैं मैंने आपका एक
Let me say this is a rhombus. Let's say I have these two diagonals. This is D1. Let's say I have another diagonal D2. Let us say this is side A. What is the relationship between A, D1 and D2? बताओ. ये मान लेते हैं A, B, C. Is equal to सर सर yes. Okay, so we have just now studied that in a rhombus, diagonals bisect each other. So this will become 90 degree, and they bisect at 90. तो ये वाली जो आधी ये लेंथ कितनी बन जाएगी D2/2, और ये लेंथ कितनी बन जाएगी D1/2. Can I say, let us say this DOC is a right angle triangle. We can apply Pythagoras theorem. All the sides are equal. So let us say this is also A. A square is equal to D1/2 का whole square plus D2/2 का whole square. So this will become 4A square is equal to D1 square upon. ना बताया था मैंने, डायगोनल पूरा D1 है. ठीक है. बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? Let me start with understanding of polygons, right? So what is a polygon? क्यों करना चाहती है जब दिख रहा है तेरे को? कुछ भी. पाइथागोरस थ्योरम से आसान कुछ है? किससे ज्यादा? कॉन्ग्रुएंट ही कर लेती हैं. हाँ, चारों नहीं होती, वर्टिकल वाली होती हैं आपस में. ऊपर और नीचे वाली होगी, लेफ्ट राइट वाली होगी, ऑपोजिट वाली होंगी, आपस में नहीं होंगी ना. कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी. ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट. हाँ हो जाएंगे. आरएचएस कॉन्ग्रुएंट. क्यों बनाना है? मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो दिख रहा है. एक बात सुन, सबसे पहले राइट एंगल आसान होता है, फिर कॉन्ग्रुएंट आसान होता है, और उससे मुश्किल होता है सिमिलर. आंसर तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से. हाँ जी दीपक बोलो. सर इसकी बैकअप क्लास कब होगी सर? बैकअप अभी तो क्लास तो होने दे. ये सर एक्चुअली मेरे एग्जाम चले हुए हैं, मैं लगा नहीं पा रहा, कुछ समझ में भी नहीं आता सर. अच्छा, तो फिर या तो पढ़ाई कर ले या इसको लगा ले, अभी पढ़ ले फिर. नहीं सर, मैं बस में बैठा हूँ अभी, एक्चुअली मैं देख ही नहीं पा रहा कुछ. बस में बैठा है, कोई नहीं, जितना समझ में आ रहा है समझ ले, कोई नहीं. ठीक.
Okay. Then we come down to polygon. What is polygon? Polygon is many-sided closed figure. So if it's an n-sided closed figure, we call it as a polygon, right? So basically there are two types of polygons that we study, convex polygon and a concave polygon. So what is a convex polygon? For example, let's say I kind of draw this figure. Right, so all the sides are not equal obviously in this, but it is still a convex polygon. So how do we really define a convex polygon? So basically it says if you choose any 2 points, right, and draw a line, if all the points lie on the same side of the line, if all the vertices lie on the same side of the line, then we can call it as a convex polygon. For example, if I were to choose, मान लेते हैं आपने ये दोनों points choose कर लिए, अब बचे हुए जो points हैं वो ये सारे इस लाइन के एक तरफ लाई कर रहे हैं, ऐसा हर पॉसिबल केस के लिए ट्रू होना चाहिए, तब जाके हम उसको कॉन्वेक्स पॉलीगन के नाम से जानते हैं. कॉन्वेक्स पॉलीगन समझ में आ रहा है? कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो और वहां से लाइन बनाओ. अब जब लाइन बनाओगे तो सारे पॉइंट्स जो है ना वो लाइन के एक साइड आने चाहिए. एक साइड मतलब या तो लाइन से नीचे या लाइन से ऊपर. जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये बनाया, ये भी एक तरह का पॉलीगन है. अब मान ले तूने ये वाली चुन लिया, अब तूने लाइन बनाई, अब ये देख सारे पॉइंट्स एक तरफ आ गए, लेकिन तूने कहा कि मैं तो ये वाला चुनना चाहती हूँ, तूने ये वाले पॉइंट चूज कर लिए, अब तूने लाइन बनाया, इसको हम कॉनकेव बोलते हैं. केव गुफा अंदर, इसको री एंटर्ड पॉलीगन के नाम से भी जाना जाता है. इज ऑल्सो नोन एज री-एंटर्ड पॉलीगन. री-एंटर्ड मतलब मान लो इसको पकड़ के आप धक्का दे दें, अंदर आ जाए. अगर मैं इसको पकड़ के धक्का दे दूं, ये अंदर आ जाए पॉइंट, तो ये फिगर ऐसे सी नहीं बन जाएगी. अब ये वाला जो फिगर है वो, यानी जो बाहर वाले पॉइंट है उसको दबा दो अंदर, उसको री-एंटर्ड पॉलीगन या कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स यहां तक. Now let us say I take 3 sides. Can I make one triangle using 3 sides? So can I say total interior angle becomes 1 into 180 degree? Because 180 degree triangle का एंगल कितना होता है? 180. अगर मैंने 4 साइड ले ली, मान लेते हैं कोई भी 4 साइड, जैसे कि 4 साइड का, कैन आई से बेसिकली मैं 2 ट्राइंगल बना सकता हूं, 2 अलग अलग ट्राइंगल. तो टोटल इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा इसका? ये था 1 into 180, तो ये बन जाएगा 2 into. समझ में आ रही बात? अगर मैंने 5 साइड ले ली तो कुछ फिगर मान लो ऐसे बनी. मैं 3 अलग अलग ट्राइंगल बना सकता हूं, तो बनेगा 3 into 180. अगर मैं 6 साइड्स ले लेता, मान लो, कितने ट्राइंगल बना सकता था अलग अलग? 4 ट्राइंगल. तो टोटल इंटीरियर एंगल, अच्छा अगर मेरे पास 7 साइड्स होती तो 5 ट्राइंगल. टोटल इंटीरियर एंगल समझ में आ रहा है? अगर 8 साइड होती तो टोटल इंटीरियर एंगल, मान लो ऐसे ही n साइड्स होती तो कितने ट्राइंगल बनते? ये समझ में आ रहा है? और टोटल इंटीरियर एंगल कितना होता? तो ये फॉर्मूला है टोटल इंटीरियर एंगल का. जितनी साइड होती है उससे 2 टर्म ट्राइंगल बनेंगे. एक ट्राइंगल का जो बनेगा 180 डिग्री. तो किसी भी पॉलीगन का टोटल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 इंटू. ठीक. अब अगर एक बात ध्यान से देखो, अगर एक ट्राइंगल था, इसमें अंदर कितने एंगल थे? 3. 4 साइड फिगर में कितने एंगल थे?
5 साइड फिगर में कितने एंगल? 6 साइड फिगर में n साइडेड फिगर होगी तो कितने एंगल बनेंगे? n एंगल बनेंगे। समझ में आ रहा है? n साइडेड फिगर होगी तो n एंगल्स। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जनरली वो आते हैं रेगुलर पॉलीगन के। किसके आते हैं? रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? हैं? all sides and all angles are equal। बट ये दोनों बात बोलनी जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। मान लो सारी साइड बराबर है तो एंगल बराबर नहीं होंगे सारे। मान लो एक ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर। स्क्वायर है, चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर। रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड बराबर, सारे एंगल बराबर। तो ऐसा बोलना है जैसे कि रोम्बस, चारों साइड बराबर है बट क्या वो रेगुलर पॉलीगन है? इसलिए दोनों कंडीशन जरूरी है, दैट नॉट ओनली साइड्स बट आल्सो द एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ये बात समझ में आती है? अब अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें n एंगल्स होंगे और सारे एंगल बराबर होंगे। तो अगर मेरे पास ईच एंगल निकालना है, कैसे निकालोगे? ईच एंगल इज टोटल एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंगल्स। ये समझ में आ रहा है? मान लो 100 सेब हैं, 20 लोगों में बांटने तो 100/20 करेंगे ना। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना बनेगा? इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। ठीक है? ऐसे ही देयर इज समथिंग नोन एज एन एक्सटीरियर एंगल। देयर इज समथिंग नोन एज exterior angle. Now let us just look at a triangle. Let us say I am having this triangle. तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? मान लेते हैं ये इसको ऐसे बढ़ा दिया, ये इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है E1, ये इसका एक्सटीरियर एंगल E2, ये इसका एक्सटीरियर एंगल E3। ये मान लेते हैं I1, ये बनते हैं इंटीरियर 2, इंटीरियर 3। एक बात तो कंफर्म है, E1 प्लस I1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी इंटीरियर प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। अब 180 में से इसको माइनस कर दें तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीरियर करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर है। ध्यान रखना, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके रिस्पेक्ट में। कोई भी ये मत पढ़ना E2 प्लस I1 तो नहीं बन रहा सर। समझ में आ रहा है? ईच एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसका वैसे तो एक मेथड भी होता है, देखो E1 प्लस I1 कितना बनेगा? 180। E2 प्लस I2 कितना बनेगा? 180। E3 प्लस I3 कितना बनेगा? 180 बनेगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 बनेगा। अभी I1 प्लस I2 इधर जाएगा तो कितना बनेगा? 180। तो कैन आई से E1 प्लस E2 प्लस E3 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 माइनस 1 इंटू 180। सो द आंसर इज 2 इंटू 180 विच इज 360 डिग्री। यानी टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री। क्या ये ट्राइंगल के लिए सच है तो क्या सबके लिए सच होगा? ये सबके लिए सच होता है। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। मान लेते हैं हम पेंटागन करते हैं, ठीक है? बोरिंग सा काम है बट कर लेते हैं एक बार। इसको हमने ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे एक्सटेंड किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे। ये मान लेते हैं I1 है तो ये E1 बनेगा, ये I2 है तो ये E2 बनेगा, ये I3 है तो ये E3 बनेगा, ये I4 है तो ये E4, ये I5 है E5, I6 है तो ये E6 चलेगा। अब अगर मैं जोड़ूं I1 प्लस E1 180, I2 प्लस E2 180, I3 प्लस E3 180, I4 प्लस E4 180, I5 प्लस E5 180, ये चलेगा। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो यहाँ बनेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5 इज इक्वल टू 5 इंटू 180 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 चलेगा।
लेकिन इंटीरियर एंगल का तो पता ही हमें क्या होता है, n-2 इंटू 180। n कितना है यहाँ पे 5, तो 5 पेंटागन लिया है ना 5 साइड। अच्छा ओके, सिक्स माइनस 2 इंटू 1 यही बनेगा, तो ये बनेगा 4 इंटू, तो यहाँ पे 6 इंटू 180 माइनस 4 इंटू 180, इफेक्टिवली कितना आ जाएगा 2 इंटू 1। इस केस में भी 2 इंटू 180, इस केस में। तो टोटल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होएगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, टोटल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ईच एक्सटीरियर कितना होगा, क्योंकि जितने इंटीरियर है उतने एक्सटीरियर है, क्योंकि इंटीरियर इक्वल है तो एक्सटीरियर भी इक्वल। तो ईच इंटीरियर कितना बनेगा n-2 इंटू 180, ईच एक्सटीरियर कितना बनेगा 360 डिवाइडेड बाय n। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर जुड़ के कितना बन जाएगा 180 डिग्री। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो ठीक है। और ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो सर्कल्स जो है, कैन आई से नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स बनाते हैं, चलो नंबर ऑफ डायगोनल्स यही बताता हूँ। हाँ, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऐसे निकाल सकते हैं हम, मान लेते हैं हम एक हेक्सागन बना लेते हैं 1 मिनट के लिए। ये हेक्सागन है। अब क्वेश्चन ये, क्या ये डायगोनल है? एनी लाइन ज्वाइनिंग नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज नोन एज अ डायगोनल। एडजेसेंट यानी ये दोनों एडजेसेंट है, नॉन एडजेसेंट यानी बगल बगल वाली को छोड़ के कोई भी लाइन डायगोनल। तो एक डायगोनल ये, दूसरी डायगोनल ये 2, ये 3, और तो नहीं बनेगी। फिर यहां से देखते हैं 4 5 6, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं, तो बन चुका 7 8 डायगोनल, ठीक। फिर यहाँ पे देखेंगे ये नहीं बनेगा, ये बनेगा 9, और कुछ नहीं बनेगा। कितने डायगोनल बन गए? अब एक तरीका ये है कि इसमें 6 पॉइंट्स हैं, कोई भी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगी, चाहे ऐसे जोड़ दें चाहे बगल वाली जोड़ दें। तो अगर मान लो 6 पॉइंट्स हैं और 2 पॉइंट्स जोड़ के एक लाइन बनती है, तो नंबर ऑफ लाइंस बनती है 62। नंबर ऑफ लाइन कितनी बनेगी 62। लेकिन इसमें से 6 लाइनें बाउंड्री की होंगी तो वो माइनस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर n साइडेड होता तो बनता nc2 माइनस n, ये रिजल्ट आएगा। nc2 होता है n इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मतलब मैं सीधा 2 लिख दूं तो भी चल जाएगा? नहीं नीचे, चलो कोई नहीं, छोड़ दो चलो। हाँ, तो ये बनेगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू, इसमें से माइनस n। अब हम इसको क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस, ये इससे कटेगा, ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस n, एलसीएम ले लेंगे 2 बनेगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n, तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरा फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरा आंसर है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स का, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल। अगर मेरे को नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, या तो ये कर लो या nc2 माइनस n कर लो, यही बात है, ये रिजल्ट है, इसका डेरिवेशन है, ये इसका नंबर ऑफ डायगोनल्स का रिजल्ट है। हाँ जी, हाँ, रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन। रेगुलर कॉल पे हो ही नहीं सकता, सारे अंदर हैं, बाहर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। चलो सर्कल्स देखें हम। आधा से थोड़ा ज्यादा लग सकता है, आधा घंटा और लगा लोगे, पौना घंटा तो कोई नहीं, कल लगा लें। हाँ